Decide among the following sets which sets are subset of one another. So we have discussed this concept of subset in the previous class. So अब मैं इसको set को पहले लिख लेता हूँ. Suppose set A is, let me write this set A is given in the roster form. Set A is given in the set builder form. Let me write it in the roster form. तो इसको roster form में लिख लेता हूँ. The equation is given in this set. X square minus 8x plus 12. तो इसको solve कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लेते हैं 6x एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0. टेक x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0. x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 कब होगा? व्हेन इट्स इक्वल टू 0. या तो x होना चाहिए 6. यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट x इज 6 एंड फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट x मे बी इक्वल टू 2. x या 6 हो सकता है या 2 हो सकता है. इन दैट केस दिस इट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी. सो द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट A इज 2,6, राइट. सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द रोस्टर फॉर्म दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Let me write this B, it is 2, 4, 6. Let me write this C, 2, 4, 6, 8 and so on. And look at this D. D is 6. तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं A किसी का सबसेट है क्या? A is a subset of anything? A. Look at this. ये 2 और 6 किसके अंदर आ रहे हैं? B के अंदर आ रहे हैं? Yes, B के अंदर आ रहे हैं. तो we can say that A is a subset of B, right? Look at this. A को चेक करते हैं C के साथ. C का सबसेट है क्या? 2, 6 आ रहे हैं? Yes. So A is a subset of C also, right? A को चेक करते हैं D से. D के अंदर 2 नहीं आ रहा है, so it's not a subset, right? अब B को चेक करते हैं. B को चेक करते हैं A में. B के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो A के भी एलिमेंट हैं? नहीं है. B के जो एलिमेंट है क्या वो C के एलिमेंट हैं? 2, 4, 6. Yes. So we can say that B is a subset of C. तो सबसेट we have discussed already in detail. थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो अगर उस सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के भी एलिमेंट हैं, in that case it is a subset. B को देखो, B is a subset of D? नहीं. C को चेक करते हैं. C क्या A का सबसेट है? 2, 6 सारे एलिमेंट आने चाहिए C के, नहीं आएंगे. B का नो. D का नो. ओके. D को चेक करते हैं. D के D हैविंग अ सिंगल एलिमेंट 6. क्या इट इज एलिमेंट ऑफ A? यस, A का भी एलिमेंट है. तो D को बोल सकते हैं D इज अ सबसेट ऑफ A. क्या D B का सबसेट है? यस, 6 B में भी है. सो D इज अ सबसेट ऑफ B ऑल्सो. लुक एट दिस. D इज अ सबसेट ऑफ C. यस, C का भी सबसेट है. सो D इज अ सबसेट ऑफ C ऑल्सो. So this is the answer in this case. So like this you need to give this answer only, right? I hope this question is clear to you. We need to find out the subset, and if you look at this, whatever I have formed this is the symbol of subset. ये subset का symbol मैं यहाँ पे बना रहा हूँ like this, C की तरह. So this is the symbol of subset. I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question here. In this question, in each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example, right? So if you look at this first part here, X belongs to A and A belongs to B, then X belongs to B. So this statement is false. This statement is false. Let me give you the example for this. Suppose there is any set, the first part. Suppose the set A having element 1, comma 2, right? And another set B having elements X A को बिलोंग करता है, ठीक है, और A B को बिलोंग करता है, ठीक है. X B को बिलोंग करता है, ये हमें बताना है, ठीक है. So look at the example here. And B is having the element, suppose 1, 2, not 2, 1, 1 comma 2, 1 comma 2 with curly bracket is the element, and suppose it is 3. So this is the element of, right, this is the element of B. Now look at the condition. X belongs to A.
So let me take 2 belongs to A. Yes, it's right. 2 A को बिलोंग करता है. 2 is the element of A. Yes, ठीक है. अब देखिए मैं लिखता हूं 1,2 विद करली ब्रैकेट बिलोंग्स टू B. क्या 1,2 करली ब्रैकेट के साथ B का एलिमेंट है? यस है. इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स A. 1,2 इज यहाँ पे A है. इट मीन्स A बिलोंग्स टू B, राइट. चलिए दोनों कंडीशन हमने ले ली है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन. नाउ आई एम गोइंग टू चेक दिस. X बिलोंग्स टू B ऑल्सो. X क्या B को बिलोंग करता है? X क्या है यहाँ पे? X यहाँ पे 1 है. X यहाँ पे 2 है, राइट, जो A को बिलोंग करते हैं. अब देखिए आप मैं यहाँ पे लिखूंगा 2. 2 क्या हो गया? X हो गया. क्या 2 B को बिलोंग करता है? क्या 2 B के अंदर है? नहीं. B के अंदर 3 एलिमेंट है. एक ये है, एक 1,2 है करली ब्रैकेट के साथ, ये कंप्लीट एलिमेंट है, एंड एक 3 है. ठीक है. सो 2 बिलोंग नहीं करता है B को. तो इसका मतलब ये हुआ X क्या B को बिलोंग करता है? 2 क्या था? 2 हमारे पास क्या था? 2X था. तो X क्या B को बिलोंग करता है? X B को बिलोंग नहीं करता है. सो दिस इज द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन. I hope it's clear to you, and it is given here X belongs to B, but this, if you look at this example, this reason here X do not belongs to B, right? I hope this part is clear to you all. ठीक है. A is a subset of B and B belongs to C, और B C को बिलोंग करता है. Then A belongs to C. A क्या C को बिलोंग करता है? ये हमें चेक करना है. ठीक है. इसके एक एग्जांपल लिखता हूं. लेट मी एक्सप्लेन दिस. So if you look at this part, if A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. Is it true or false? It's false. Let me give you the example for this. Suppose A is equal to, B is equal to, and C is equal to. Suppose A is equal to 0,2, right? And suppose A is equal to 2, B is equal to 0,2, right? And C is equal to 1, 0,2 with curly bracket and 3. So why it is false? So we have to give the reason for that. Suppose मैंने ABC ये लिख लिए हैं, एक रीजन हम लोग देते हैं. कंडीशन चेक कीजिए. कंडीशन चेक करते हैं. पहली कंडीशन है A B का सबसेट है क्या? यस, A इज अ सबसेट ऑफ B. तो आप देखेंगे ऑल द एलिमेंट ऑफ A के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो B का भी एलिमेंट है? यस है. तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है. सेकंड देखते हैं, B क्या C को बिलोंग करता है? जो B है कंप्लीट B, ये पूरा B क्या C के अंदर आता है? यस आता है. सो B C को बिलोंग करता है. ये कंडीशन भी ट्रू हो गई है. अब चेक कीजिए क्या A C को बिलोंग करता है? क्या A ये कंप्लीट A 2 करली ब्रैकेट के साथ क्या C के अंदर आता है? क्या C के अंदर आ रहा है 2? यहाँ 1 आ रहा है. 3 एलिमेंट है इसके अंदर. 1 है, 0,2 है करली ब्रैकेट के साथ, और 3 है. अकेला 2 करली ब्रैकेट के साथ नहीं है. सो इट डू नॉट बिलोंग्स टू C. सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, राइट. एंड इट इज गिवन हियर. यहाँ पे दे रखा था A C को बिलोंग करता है, बट हमने यहाँ पे प्रूव किया A C को बिलोंग नहीं करता है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. Look at this third part. In this third part, it is given if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Is it true or false? True. Yes, right. It's true. It's true. Okay. So if it is true, so we need to, हमें इसका रीजन भी देने होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है. अगर ट्रू है तो प्रूव करो, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल दो. सो इसको हमें करना है प्रूफ. सो हाउ टू प्रूव इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, दो चीजें लेट कर लेते हैं. A बिलोंग्स टू, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C.
ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, ये चीजें हैं। और फिर हमें देन वी नीड टू प्रूव हियर ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सी, राइट? सो नाउ लेट मी प्रूव इट। सपोज x बिलोंग्स टू a, x इज द एलिमेंट ऑफ a, राइट? अगर x a का एलिमेंट है, so therefore we can say that a is a subset of b, right? नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, इसको लेट करता हूं पहले। नाउ लेट x बिलोंग्स टू a, तो मैंने लेट किया a के अंदर जो एलिमेंट है वो x है, राइट? देन इट इंप्लाइज दैट अगर x a के अंदर है और a किसका सबसेट है, a b का सबसेट है, तो x b के अंदर भी होगा, राइट? सो इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। व्हाई? बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b, राइट? एंड इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c ऑल्सो, x c को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि x अगर b को बिलोंग कर रहा है तो b किसका सबसेट है, c का, तो x c के अंदर भी होगा। यस डेफिनेटली होगा, बिकॉज रीजन इज b बिलोंग्स टू c, राइट? देन अगर लेट मी नाउ इट वी फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट अगर a b का सबसेट है, b c का सबसेट है, x देखिए x अगर a को बिलोंग कर रहा है, x b को बिलोंग कर रहा है, x c को बिलोंग कर रहा है, तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू a and this x also belongs to c, so means x is the element of a, x is also the element of c, so what does we conclude that a is a subset of c, a c का सबसेट होगा। let me explain this with the help of example to you, then it will be little bit more clear here। अब इसको एग्जांपल से बताता हूं। मैंने माना a एक एग्जांपल लिया, a लिया मैंने 1 2, ठीक है? एक सेट मैंने b लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है? a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, ऐसे नहीं लेंगे इसको। तो इसको एग्जांपल से बताता हूं। a इज इक्वल टू, सपोज a इज इक्वल टू 1, राइट? एंड b, अब मैंने कंडीशन क्या लेट की है, b को मैंने लेट किया a b का सबसेट है, ठीक है? a अगर b का सबसेट है, इट मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ a इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ b, जो a के एलिमेंट हो b के भी एलिमेंट होंगे। तो इट सपोज b इज इक्वल टू 1 2, सो इज a इज अ सबसेट ऑफ b, क्या b का सबसेट है? यस, b का सबसेट है। नाउ लेट मी, एक मैंने ये कंडीशन लेट कर लिया, ठीक है? अब c लेट करता हूं। b किसका सबसेट है? c का, तो जो b के एलिमेंट है वो c के अंदर भी होने चाहिए। 1 2 3, देखो 1 है c के अंदर, 2 है, तो b c का सबसेट भी है। तो मैंने इस तरह से एग्जांपल लेट किया a b c, जिसको ये कंडीशन दोनों फॉलो कर रहा है। अब मुझे ये चेक करना है इसमें a क्या c का सबसेट है, क्या जो a के एलिमेंट हैं वो c के भी एलिमेंट हैं? यस, a इज अ सबसेट ऑफ c, a के जो एलिमेंट है वो c के भी एलिमेंट हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल बेटर इन अ बेटर वे फ्रॉम हियर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो लाइक दिस यू हैव टू प्रूव इट। सो अगर वन a के अंदर है और 1 b के अंदर भी है और 1 c के अंदर भी है, ठीक है? तो जो है c और a का रिलेशन क्या होगा? a c का सबसेट होगा। I hope this thing is clear to you. Now let's move to the next part. Look at this fourth part. If a is not a subset of b, b is not a subset of c, then a is not a subset of c. So similarly we can prove this as, अभी मैंने जो प्रूव किया है उसी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? False. Yes, it's false. It's not necessary. And if you look at the previous part, in the previous part this condition true, अगर a b का सबसेट है, b c का सबसेट है, तो a c का सबसेट होगा। लेकिन ये ट्रू था, लेकिन ये फॉल्स आ गया। अगर a b का सबसेट है, a b का सबसेट नहीं है, b c का सबसेट नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a c का सबसेट ना हो। इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स आएगा तो हमें इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सो लेट मी गिव द एग्जाम्पल हियर।
सो एग्जांपल के लिए मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूं, सपोज ए बी सी को लेट कर लेता हूं. सो एग्जांपल इज सपोज ए इज इक्वल टू 1,2, ए बी सी को मैं लेट कर लेता हूं. सपोज ए इज इक्वल टू 1,2, b is equal to 0, 6, 8, and suppose c is equal to 0, 1, 2, 6, 9, like this, right? Now let me explain this. Look at the condition here. क्या a b का सबसेट है? क्या a के सारे एलिमेंट b के अंदर आते हैं? नहीं आ रहे हैं. So a is not a subset of b. ठीक है, ये कंडीशन, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है इस एग्जांपल में. अब चेक कीजिए, क्या बी सी का सबसेट है? क्या बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आते हैं? बी क्या है? 0, 6, 8. इसके अंदर है 0, 6, 8 नहीं है. सो वी कैन से दैट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी. सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई है. अब थर्ड देखिए, क्या ए सी का सबसेट है? क्या ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर भी आते हैं? 1 और 2 आ रहे हैं. सो यस, ए इज अ सबसेट ऑफ सी. But in the question it is given that A is not a subset of C. So this is the explanation here. So we can say that A is a subset of C in this case. So hence it is false. Right? So however, A is a subset of C in this example. So that's why it is false. I hope it is clear to you all. Yes, sir. Okay. Now let's move to the next part. Look at this fifth part here. In the fifth part, X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B. Is it true or false? Is it true or false? Anyone? आराम से देखो, देख के बताओ क्या ट्रू है या फॉल्स है. क्वेश्चन में दे रखा है एक्स ए को बिलोंग करता है, ठीक है, और ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो क्या एक्स बी को बिलोंग करेगा? एक्स बी को बिलोंग करेगा, ये बोल रहा है. बट ऐसा जरूरी नहीं है. इट इज false. False. So let me explain this with the help of example. So we need, if it is false, we need to give the example in this question. So the example is, suppose if I let A and B. Suppose the element of A is 1, 2, 3. And element of B is 3, 4 and 5. Look at the given condition here. The first condition is X belongs to A. So what is X? X is 1, 2 and 3. ये X है. So X A को बिलोंग कर रहा है, 1, 2, 3 belongs to A. Okay. क्या A B का सबसेट है? इसमें, इस केस में देखिए, A अगर B का सबसेट होगा तो 1 और 2 और 3 ये B के अंदर होने चाहिए. क्या B के अंदर है? नहीं, केवल 3 है. सो A B का सबसेट नहीं है. ओके, सो दिस इज द टू गिवन कंडीशन. मैंने लेट कर लिया A को ये और B को ये. सो आई लेट इट एज दिस थिंग, आई लेट X बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, राइट. अब मुझे चेक करना है क्या X B को बिलोंग करता है. X क्या B को बिलोंग करता है? देखिए, क्या 1 B को बिलोंग करता है? नहीं. 2 करता है? नहीं, 2 B के अंदर नहीं आ रहा. 3 करता है? 3 कर रहा है, लेकिन सारे X बिलोंग नहीं कर रहे हैं. सो वी कैन कंक्लूड दैट हाउएवर one does not belongs to B, right? So what does it mean? So we conclude that 1 तो X था, we conclude that X does not belongs to B, right? So that's why it is false.
अगर ये आता x belongs to b, then in that case it is true. So this is the reason why it is false, right? I hope it's clear to you. Now let's move to the next part. Look at this sixth part. If a is a subset of b and x does not belongs to b, then x does not belongs to a. Is it true or false? True. Yes, it's true. So we need to prove it. So if it is true, we need to prove it. So what is given in the question is, so prove करना है. Given है हमें A is a subset of B. The first thing is given this and, so इसको let भी कर सकते हैं. Let A is a subset of B and X does not belongs to B. And what we need to prove here? हमें prove करना है अगर ऐसा है, अगर A B का सबसेट है और X B को बिलोंग नहीं करता है, तो हमें प्रूव करना है So we need to prove X does not belongs to A. X does not belongs to A, right? So now let's prove it. Now let me prove it. If possible, suppose X belongs to A. तो मैंने सपोज कर लिया है अगर ऐसा पॉसिबल है कि X A को बिलोंग करता है, राइट? सो व्हाट विल हैपन देन अगर X A को बिलोंग करता है, then in that case X belongs to B also. Why? Because A is a subset of B. A B का सबसेट है, तो मीन्स जो A के अंदर एलिमेंट होंगे वो X के B के अंदर भी होंगे, राइट? इफ इट्स पॉसिबल, सो इन दैट केस देन X belongs to B, राइट? Which contradict the fact that, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, which contradict that X does not belongs to B. ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है. तो जो मैंने सपोज किया है कि X A को बिलोंग करता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल. X A को बिलोंग नहीं कर सकता है, राइट? So therefore we conclude that X does not belongs to A, right? I hope this thing is clear to you.